warmly welcome you कि आपने टाइम भी निकाला है and we have this very important topic today, Trump's tariffs and its implications. तो प्राइमरीली ये जो हमारी डिस्कशन है, ये इसको हमने इस चीज़ को मद्देनजर रख के ही आपके साथ गुफ्तगू जो है वो करेंगे हम, बिकॉज आपका एक एक्सपीरियंस है सीएसएस के हवाले से भी, यू बीन टीचिंग, ठीक है, और आपने खुद यू आर ऑलरेडी सर्विंग इन द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान एंड यू हैव मैसिव एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू, or overall anyone who is interested in knowing actually the global politics and the things attached with it. So I'll start with your brief introduction, and then we'll formally start. So sir, please, over to you. Right. So, my name is Asad Ijaz Bhatt. I'm from the 46th Command, or before joining the service, I was working as an economist with the United Nations Development Program. Prior to that, I was in Canada. I did my undergrad and master's in economics and international development from two Canadian universities. These days, I'm in the US finishing a PhD in public policy and economics on leave from the civil service. And in the service, I served a lot in the Ministry of Finance in Islamabad. So looked at some of these policy issues, specifically the IMF program in Pakistan, debt management issues with the debt office in the Ministry of Finance, taxation issues with the FPR. So I've looked at a lot of these policy problems that Pakistan faces, or these conundrums and the different policy options that Pakistan has very, very closely. And yeah, that's my background. And my own research these days during my PhD is in the areas of taxation and wealth inequalities. Thank you very much. Thank you very much for this detailed and brief introduction. So let's start with the very, very basic question, sir. What is basically tariff? So tariffs, हमारे पास, there is something called a protectionist regime. Historically, countries started with this idea of protectionist regimes. पहले तो इसका जो थोड़ी तारीख है, थोड़ी मैं तारीख इसकी बता दूं, जो कि मेजॉरिटी सीएसएस एस्पायरेंट्स को वैसे ही पता होगी, कि जब ये पोस्ट वॉर वर्ल्ड स्टार्ट हुआ बैक इन 1946, 1947, राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, तो सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब मारिद वजूद में आई, तो उसके साथ साथ एक और इदारा बनाया गया जिसका नाम था गैट, GATT. I think it's abbreviated as the General Agreement on Tariffs and Trade, or something of that sort. Trade and tariffs, yes. Trade and tariffs. So the idea of a tariff was basically ingrained within that concept of forming the GATT, which was often called the GATT. And the GATT was basically a rule forming or a rule making body that had to regulate इंटरनेशनल ट्रेड. एंड द आइडिया वाज कि पोस्ट वॉर वर्ल्ड में हम यही चाह रहे थे ना, कि जो एक एडम स्मिथियन आइडिया था, या एक रिकार्डो का जो पोस्ट स्मिथियन आइडिया था, ये जो एडम स्मिथ वाज आल्सो ऑफ्टन क्रेडिटेड as the founder of economics, of also called the father of economics. एडम स्मिथ ये कहते थे, वो उन्होंने स्कॉटलैंड और ब्रिटेन की एग्जांपल दी, और वो ये कहते थे कि टू कंट्रीज विल बी बेटर ऑफ इफ दे ट्रेड विद ईच अदर. और फिर उसके बाद डेविड रिकार्डो, द फेमस इकोनॉमिस्ट, बिल्ट ऑन दैट आइडिया. और उन्होंने फिर डेविड रिकार्डो ने कहा कि आइडियाज दिए जिनको आज हम कहते हैं ना कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज, के दो ममालिक जब ट्रेड करते हैं तो उनका कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है और एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, वगैरह वगैरह. मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज का फर्क क्या है, बट स्टूडेंट्स कैन गूगल दिस एंड गेट द डेफिनेशंस. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये बात इकोनॉमिक फिलॉसफी में, वकास साहब, बहुत पुरानी इनग्रेन हुई हुई है कि दो ममालिक जब तिजारत करेंगे यानी ट्रेड करेंगे तो दे विल बी बेटर ऑफ. तो जब पोस्ट वॉर वर्ल्ड में आप जानते हैं कि ये सारा वो जो क्या बोलते थे इसको, मार्शल प्लान, यस, मार्शल प्लान, और वो सब चीजें जब स्टार्ट हुई, तो जो दोनों पोल्स थे कोल्ड वॉर में, उनको ये पता था कि हमने छोटे ममालिक को सपोर्ट करना है उनके साथ तिजारत करके या थ्रू एड. तो आप, ये दो या तीन मैकेनिज्म थे ना, कि या आप एड दो, या आप डेट दो, या आप तिजारत करो. और अगर आप इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को, वकास साहब, समझे ना, तो इदारे बड़े केयरफुली बनाए गए.
गैट जैसे इदारे बनाए गए ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बनाए गए डेट को फैसिलिटेट करने के लिए, और यूएस एड, ऑस एड, एफसीडीओ जैसी एड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई एड को फैसिलिटेट करने के लिए। तो बेसिकली जिसको हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं, उसके जिस तरह द वे आई अंडरस्टैंड हाउ दिस रिजीम वाज स्ट्रक्चर्ड, और उसका ढांचा या स्ट्रक्चर को समझना बहुत अहम है स्टूडेंट्स के लिए, कि ये जो तीन आप समझ सकते हैं ना कि ट्रांसमिशन चैनल्स हैं जिनके थ्रू पैसे ने, या आप उस, और पैसे, जब मैं पैसा कहता हूं तो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मनी, उसके अंदर एक और नुआंस है कि वो पैसा किस शक्ल में जाना था, और उसकी उस पैसे की बहुत सारी शक्लें हैं। लेकिन जो एक उसकी सबसे ज्यादा डोमिनेंट शक्ल है इन द पोस्ट वॉर वर्ल्ड, उसको हम कहते हैं यूएस डॉलर, जो एक ग्लोबल करेंसी है जिसकी सबको जरूरत है। अमेरिका की वो अपनी करेंसी है, और बाकी मुल्कों के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है या फॉरेन एक्सचेंज है, जिस तरह हम उसको ग्रीन बैग भी बोलते हैं, या यूएस डॉलर। तो वो डॉलर की शक्ल में छोटे ममालिक को जाना था जिनको उस डॉलर की बहरहाल बहुत जरूरत थी। और उनको उस डॉलर की जरूरत क्यों थी? क्योंकि वो सब इंपोर्ट उस डॉलर की शक्ल में करते। तो उनको अपनी इकोनॉमीज में अगर तेल इंपोर्ट करना है या कोई भी और कमोडिटी इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए उनको वो डॉलर चाहिए। और वो डॉलर, जैसे मैंने कहा, कि तरक्की याफ्ता मुल्कों ने ये प्रॉमिस किया इन द पोस्ट वॉर वर्ल्ड कि दुनिया में अगर पीस और स्टेबिलिटी चाहिए, तो हम इन तीन तरीकों से आप लोगों तक पैसा पहुंचाएंगे। या तो आप कर्जा ले लें, कुछ हम कर्जा नहीं देंगे, कुछ हम एड प्रोग्राम्स करेंगे, और तीसरा ये कि आप हमसे ट्रेड करना शुरू करें। ठीक है जी। और ये तीनों चीजें की गई इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो मैं इसकी तारीख में नहीं जाऊंगा कि 60s की डेकेड में डेवलपमेंट की शक्ल क्या थी, 70 की दिहाई में डेवलपमेंट की शक्ल क्या थी। हम डेवलपमेंट पे एक अलग सेशन रख सकते हैं, जो एक कंटेस्टेड लेगेसीज है ना दुनिया में इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, और कैसे जो दुनिया में 60s 70s में डेवलपमेंट समझी जाती थी, उसकी आज लेगेसी क्या है, एंड व्हाई दैट लेगेसी इज कंटेस्टेड। वैसे मैं आज शाम को इधर बॉस्टन में यूएस में इसी टॉपिक के ऊपर एक टॉक दे रहा हूँ। अगर तो वो रिकॉर्ड हुई तो मैं आपके स्टूडेंट से और आपसे शेयर करूंगा। तो एनीवेज, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कहना ये चाह रहा हूं इस सारी बात से, इस बैकग्राउंड से, इस कॉन्टेक्स्ट को सेट करना क्यों जरूरी है, कि जब गैट बनाया गया तो उसका मकसद था कि वो ट्रेड को फैसिलिटेट करे। लेकिन उसी वक्त फकास साहब ये भी होना शुरू हुआ, जैसे कि चीन में हुआ, कि दुनिया में वो वाले ममालिक जो कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जो कि लीन करते थे टुवर्ड्स द यूएसएसआर या टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट रिजीम, उन्होंने तो अपने बॉर्डर्स बंद कर रखे थे। वो तो ट्रेड का हिस्सा नहीं बन रहे थे, या वो डब्ल्यूटीओ या गैट का हिस्सा नहीं बन रहे थे। और फिर वो ममालिक जो गैट का हिस्सा थे, उनमें वो ममालिक भी थे जिनमें प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम्स थी, जिनको ये नजर आता था कि वो चाइना जैसे ममालिक की एग्जांपल्स देखते थे कि वो अपनी नेसेंट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, उस पर एक बात भी समझने की जरूरत है कि दुनिया में द सर्विस इकोनॉमी वाज नॉट वेरी लार्ज बैक इन द डे, राइट? द सर्विस इकोनॉमी हैज ग्रोन विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो अगर हम 60s 70s, राइट इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू बात करें, तो दुनिया में द सर्विस इकोनॉमी वाज नॉट वेरी लार्ज। तो जो आइडिया था ना टैरिफ्स का या एक प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम का, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज इंपोर्ट से था। ये बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इंपोर्ट्स को एज अ होल नहीं देख रहे। इवन आज भी परहैप्स डोनाल्ड ट्रंप का जो, या ये जो ट्रम्पियन टैरिफ जिसको हम कहते हैं, इसका जो आइडिया है, उसका जो ताल्लुक है, दैट इट प्राइमरली रिलेट्स टू मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, नॉट टू ओवरऑल इंपोर्ट्स, बिकॉज अ वेरी लार्ज चंक ऑफ दोज इंपोर्ट्स इज ऑल्सो इंक्लूड्स सर्विस इंपोर्ट्स ऑल्सो। सो वी आर जस्ट लुकिंग एट दैट वन काइंड ऑफ इंपोर्ट्स विच आर मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। तो मुमालिक ने उस वक्त ये कहा कि उनका जिन मुल्कों के साथ अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस होता था, यानी कि वो उन मुमालिक से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको उनमें इतनी, उन इकोनॉमीज में इतनी जान नहीं थी कि वो उनको उतनी ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर सके। जैसे पाकिस्तान का भी आज एक मसला है कि हमारी इकोनॉमी में चूंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ, हमारी इंडस्ट्रियल बेस एक्सपैंड नहीं हुई, तो हम इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते जितनी हम इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो उसकी वजह से दुनिया में हमें देखने को ये चीज मिली कि हर मुल्क ने
प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम्स अडॉप्ट की। और वो प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम्स जो थी वकास साहब, वो स्पेशली वो दोज कंट्रीज दैट ओपनली अधेयर टू फ्री मार्केट्स, तो Sir, उन I'm sorry, ममालिक। sorry, sorry to interrupt here. जी Before we move forward about okay, which countries opted for the protectionism, I would slightly ask you a very more जी जी basic जी, प्लीज question प्लीज before we प्लीज। move forward. Number जी, one, that what is protectionism actually? ओके। Number one. And number two, is it necessarily because the popular perception right now, what we are hearing in the Western media or in the articles or the journals, is हम्म that okay, protectionism feels like a negative word. हम्म Is it necessarily a negative word or is it कि ये कंट्रीज का अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की एक फिलॉसफी है? तो ये दो चीजें प्लीज इस पे आप बात करिए। जी जी जरूर। मैं बस वो जो आपका पहला सवाल था उसको मैं रैप कर दूं और मैं फिर बड़ी क्विकली इस पे आता हूं। और किसी ने मेरा ख्याल चैट में भी सवाल पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैरिफ्स आर देयर, और मैं उसी तरफ जा रहा हूं। बस मैं सिंपल ये बता दूं जी, कहानी सिर्फ इतनी सी है कि कुछ ममालिक ने, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम्स की, और जो वकास साहब आपका सवाल था, और वो प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम का मेन मकसद था कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे कि पाकिस्तान अगर टेक्सटाइल बनाता था, और लेट्स से कि आज हम बांग्लादेश से टेक्सटाइल या चाइना से टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हुकूमत पाकिस्तान टैरिफ लगाती है, तो उस टैरिफ का एक ही मकसद है या होता था कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें। अब जो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है ना, यहां से ये लफ्ज निकला प्रोटेक्शनिज्म। बिकॉज द आइडिया ऑफ टैरिफ्स वाज टू डिसइंसेंटिवाइज इंपोर्ट। आप इंपोर्ट को इतना महंगा कर दो, उस पे एक मजीद कॉस्ट ऐड करके, कि लोग इंपोर्ट करना छोड़ें। अच्छा, ना सिर्फ कि आप लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपको आप एक मजबूरी क्रिएट कर रहे हो। यू आर क्रिएटिंग अ कंपल्शन कि आप उन प्रोडक्ट्स को लोकली प्रोड्यूस करें, राइट। अगर मेरे मुल्क में पेंसिल नहीं आती इंपोर्ट होके, तो मैं एक लोकल इंडस्ट्री के लिए ये मजबूरी बना रहा हूं, क्योंकि मार्केट में पेंसिल की डिमांड एग्जिस्ट करती है। तो मैं लोकल इंडस्ट्री के लिए ये मजबूरी बनाती है हुकूमत थ्रू पब्लिक पॉलिसी। अब यहां पे एक पॉलिसी का बड़ा अहम रोल है कि गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमीज को और कैसे पूरी पूरी नेशंस को शेप कर सकती है अपनी एक लाइन की पॉलिसी से। अब आप खुद सोचें कि अगर सरकार लिख दे कि कल से पाकिस्तान में पेंसिल की इंपोर्ट पे मैंने 200% ड्यूटी लगा दी है, तो पेंसिल की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि पाकिस्तान में पेंसिल आनी बाहर से तो बंद हो गई, तो फिर यहां पे आपको लोकल इंडस्ट्रियां सेटअप होती नजर आएंगी जो पेंसिल बनाना शुरू करेंगी, क्योंकि मार्केट में पेंसिल की डिमांड एग्जिस्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने वो एक लाइन लिख के कि कल से हमने पेंसिल पे 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, उस पेंसिल की जो इंडस्ट्री है उसकी टोटल आउटलुक, कॉम्प्लेक्शन, उसका डायनेमिक ही पूरा तब्दील करती है। ठीक है जी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मेन मकसद उस वक्त था कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन आज मेन मकसद ये नहीं है। आज दुनिया में ऑल इकोनॉमीज आर चेजिंग द यूएस डॉलर। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी का खाली मेन मकसद टैरिफ, अगर पाकिस्तान टैरिफ लगाता है, जैसे कि अभी आपने 2022 में देखा कि इसहाक डार साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो पाकिस्तान ने एक प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम इंपोर्ट की। जब आपको याद होगा, हमने एलसीज बंद कर दी। अब उस वक्त क्या हो रहा था? अब यहां पे एक जो आपके स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि टैरिफ और की टाइप्स क्या है। अब टैरिफ्स की दो टाइप्स हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। एक का नाम, एक को हम कहते हैं टैरिफ, एक को हम कहते हैं कोटा। आई होप मैंने प्रोटेक्शनिज्म वाला सवाल जो है उसका जवाब दे दिया। एक है जी टैरिफ और एक है कोटा। टैरिफ वो है जो कि कॉस्ट के ऊपर लगाया जाता है इन डॉलर टर्म्स या एक परसेंटेज टर्म में। यानी कि मैं अगर $100 की कॉस्ट की चीज इंपोर्ट कर रहा हूं, $100 की चीज, $100 की चीज यहां पे किसी कोई पूछ रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन जार्गन। जार्गन से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कि जो मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं वो साथ सर साथ एक्सप्लेन सर करूं? ये अब यू गो ऑन और कंटिन्यू, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना वो मेरा ख्याल है कि वी विल डिसाइड कि विच क्वेश्चंस टू टेक और नॉट, ताकि अच्छा, फ्लो ओके। फ्लो आपका जो फ्लो है वो उसमें हम फिर हाँ, वो कंटिन्यू। चूंकि क्वेश्चंस मेरी स्क्रीन और पर भी जार्गन से पॉपअप हो मुराद गए, तो बेसिकली मुझे मैंने मुझे जो सिर्फ ये परेशानी है कि मैं अपना ये सरमन नहीं 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 यूनिलैटरल ना वो चलाता रहूं। नहीं 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 वो उसमें ये हो सकता है ना कि कुछ बच्चों का अभी इकोनॉमिक्स की या इस तरह की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बेसिक टर्म्स हैं उनका राइट। स्टार्ट भी होता है बाजुकात। मैं कोशिश करता हूं हाँ कि मैं उनको हाँ आसान करके साथ साथ नहीं, एक्सप्लेन करता रहूं। चले, जी ठीक है। थैंक यू। तो मैं ये वकास साहब ये कह रहा था, मैं दोबारा, सॉरी आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। मैं ये कह रहा था कि
मैं ये कह रहा था कि दो तरह के टैरिफ्स हैं। एक जो है वो है जो जिसको हम टैरिफ कहते हैं, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो है जो कॉस्ट के ऊपर लगाया जाता है। यानी कि अगर आपने, वकास साहब एक इंपोर्टर हैं और आप स्टील इंपोर्ट करते हैं, या आप टेक्सटाइल सेक्टर में और आप धागा इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि 20% टैरिफ है धागे की इंपोर्ट के ऊपर, तो इस बात का मतलब यह है कि फॉर एवरी $100 of dhaga imported by Mr. Vikas Nawaz, he will have to pay the customs authorities $20 on top of those $100. तो उसकी जो लैंडेड कॉस्ट है, जो आपको कॉस्ट पड़ेगी, वो $120 होगी। इट वुड नॉट बी $100, राइट? एक तो ये बात। अब यहां पे जो 20% का टैरिफ लगा है, वो कॉस्ट के ऊपर लगा है, वो डॉलर वैल्यू ऑफ योर इंपोर्ट के ऊपर लगा है। अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि वकास साहब धागा मंगवाते हैं और वो धागा टन्स में लेट से आप इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि नो कॉरपोरेशन और नो फर्म और नो कंपनी और नो इंडिविजुअल इंपोर्टर वुड बी अलाउड टू इंपोर्ट मोर देन 1 टन ऑफ धागा, अब यहां पे आपने कॉस्ट के ऊपर कदगन नहीं लगाई, आपने कदगन लगाई क्वांटिटी के ऊपर, राइट? तो आप इसको हम कहेंगे कोटा, कि हर इंपोर्टर को एक तरह से एक कोटा दे दिया गया कि भाई आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब ये भी एक प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम ही है, क्योंकि आप इसके थ्रू इंपोर्ट्स को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हो, जैसे मैंने शुरू में कहा। और प्रोटेक्शनिज्म इसको क्यों कहा जाता था, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि क्योंकि वो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए था। लेकिन अब की जो टैरिफ रिजीम्स हैं, उसका खाली मकसद प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, उसका एक बुनियादी मकसद, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, यानी कि अपने मुल्क से फॉरेक्स की फ्लाइट को, कैपिटल फ्लाइट को रोकना मकसद है। क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हो, तो आप फॉरेन एक्सचेंज जब पे करते हो एक फॉरेन सेलर को, जिसने आपको सेल किया है, तो बेसिकली आप अपने मुल्क से वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व निकाल कर किसी और मुल्क को पे कर देते हो। तो बेसिकली पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनके 9 या 10, पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, 10 बिलियन के लगभग हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह रहे हैं पिछले 2 साल से, जबकि पाकिस्तान $80 बिलियन की सिर्फ इंपोर्ट करता है। $80 बिलियन की इंपोर्ट करता है जी, सालाना। तो इसका मतलब है कि अगर उसको आप 12 से डिवाइड करें वकास साहब, तो आपकी लगभग 6.5 से 7 बिलियन डॉलर की मंथली इंपोर्ट है, जिसमें से 30 से 35 बिलियन डॉलर की आपकी सिर्फ ऑयल की इंपोर्ट्स हैं। यानी कि 30 से 35 का मतलब है लगभग $3 बिलियन का ऑयल हर महीने पाकिस्तान ने इंपोर्ट करना है, टू कीप द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी मूविंग। तो 6.5 से 7 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट जो मुल्क हर महीने करता है, उसके पास अगर टोटल रिजर्व्स ही पूरी मईशत के पास 9 या 10 बिलियन डॉलर के हों, तो इस बात का मतलब यह है कि उसके पास सिर्फ 1.5 महीने की इंपोर्ट का के पैसे हैं। जो आप खबरों में, ये हमारे सारे बच्चे और स्टूडेंट्स ये बात अक्सर सुनते होंगे ना, कि पाकिस्तान के पास जी 2 हफ्ते की के पैसे रह गए। अक्सर अखबार ये हेडलाइंस लगाते हैं, या मईशत के पास इकोनॉमी को चलाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे रह गए, तो उससे लोगों को लगता है कि वो 2 हफ्ते बाद हमारा मुल्क खत्म होने लगा या मईशत खत्म होने लगी। उससे बेसिकली मुराद ये होती है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास इतने हैं कि हम सिर्फ 1.5 महीने की इंपोर्ट कर सकते हैं। जब वो खत्म होते हैं तो हम आईएमएफ के पास चले जाते हैं, हम पेरिस क्लब के पास चले जाते हैं, हम कमर्शियल डेट में एंगेज करते हैं, हम बायलैटरल डोनर्स के पास जाते हैं। यानी कि बायलैटरल से मतलब कि जो दूसरे ममालिक से हम डायरेक्टली पैसे लेते हैं। आईएमएफ वगैरह मल्टीलैटरल डोनर्स हैं, चाइना वगैरह वगैरह, सऊदी अरेबिया, ये हमारे बायलैटरल डोनर्स हैं। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप अब जो मेन मकसद है टैरिफ का पूरी दुनिया में, वो अपने ट्रेड बैलेंस को, अब ट्रेड बैलेंस क्या है? इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम है, इसका मतलब है आपके मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज निकल ज्यादा रही है और आ कम रही है। तो इसलिए हर मुल्क ये चाहता है कि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंजर्व करें। पाकिस्तान का भी यही मकसद है और इस पर डोनाल्ड ट्रंप का भी यही मकसद है, और उसको करने के दोनों तरीके हैं, टैरिफ भी है और कोटा भी है। ठीक है जी। अच्छा, जो कोटा है ना, लाइसेंसेस कोटास को, या आप गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाए जिसके थ्रू वो इंपोर्ट्स को डिसइंसेंटिवाइज करे, लेकिन पैसा ऐड ना करे, किसी नॉन मॉनिटरी तरीके से इंपोर्ट को डिसइंसेंटिवाइज करे, जैसे कि कोटास। उन सब के लिए हम एक कैटेगरी या एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, एनटीबीज।
सो बेसिकली कोटाज इज द मोस्ट पॉपुलर नॉन टैरिफ बैरियर, और उसके साथ टैरिफ बैरियर्स हैं जो कि इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखे हैं, यानी कि जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डॉलर अमाउंट के ऊपर, ₹100 के ऊपर लेट से आप $20 या $30 ऐड कर देते हो, ठीक है। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ, और जैसे मैं, ये तो दो किस्म के चीजें हो गई, और नॉन टैरिफ बैरियर में सबसे जो मशहूर है वो कोटास हैं। और जो दो मकासद हैं इसको करने के, वकास साहब मैं बार बार स्टूडेंट्स को ना एक स्ट्रक्चर से समझाना चाह रहा हूं ताकि इनको ये कभी बात भूले ना। जो दोनों मकासद हैं, वो पुराना मकसद, जब पूरी दुनिया एक 70s में एक इंडस्ट्रियल फेज से गुजर रही थी, तो उस वक्त समझ में आता था कि मकसद यही था कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो ममालिक जो कि क्लोज्ड इकोनॉमीज थी, जिनके बॉर्डर्स बंद थे, चूंकि वो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, उनकी तो वैसे इकोनॉमीज प्रोटेक्टेड थी टू फॉरेन कंपटीशन, बिकॉज वो तो कोई फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं कर रहे थे। जो ममालिक ने ओपन इकोनॉमीज रखी थी, यानी कि वो तिजारत करते थे दूसरे ममालिक से, वहां पे फॉरेन गुड्स भी आते थे उनकी मार्केट्स में, और उनकी लोकल इंडस्ट्री को फॉरेन गुड्स के साथ कंपीट करना पड़ता था। और अगर उनकी लोकल इंडस्ट्री नेसेंट थी, यानी कि अभी बिल्कुल नौमौलूद थी, तो उन लोगों को फिर लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम लानी पड़ती थी। वो प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम चाहे कोटा पे बेस्ड थी या चाहे टैरिफ पे बेस्ड थी, उसका मकसद सिर्फ यही था कि हम लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें by blocking foreign competition. And this is exactly what happened in the 70s and the 80s. But now, in the present international economic system, जहां डेट फाइनेंस में, उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन अब जो दुनिया में जहां इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस, यानी कि टू मेनी इकोनॉमीज आर चेजिंग टू फ्यू डॉलर्स, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना मेन मकसद नहीं है, कैपिटल की फ्लाइट रोकना मेन मकसद है, कि हम इंपोर्ट को डिसइंसेंटिवाइज करें ताकि मुल्क से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या डॉलर है वो बाहर ना चला जाए। तो इसलिए अब टैरिफ्स की जो रिजीम हमें प्रेजेंट देखने में आती है, उसका मेन मकसद ये है। जी विकास साहब। यहीं से वो अगला दूसरा सवाल मेरा लिंक हो जाएगा कि दुनिया में जब ये सारे रूल्स, मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा जोसेफ स्टिग्लिट्स का, जी ठीक है। जी। उन्होंने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के साथ फर्स्ट हैंड वर्क विद अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, ठीक है। ही इज एन इनसाइडर, ही कॉल्स हिमसेल्फ एन इनसाइडर ऑफ द सिस्टम। So हम्म। he says that okay, when this system was being built, these financial economic regimes were being built. So it was the America who was the leading character to lay down the rules of the global trade and everything. But Right. now he says that once America has benefited from these rules, and now the very same rules disadvantages American economy, so they have just opted for this regime of protectionism. और जिसका evidence ये है कि it is from the political history of America, it has been only the second time when a president has gone to the re-election and has won the election. And Donald Trump is the second president in the recent history. He is the first actually in the modern sense. ठीक है, इसका मतलब है कि there is something fundamentally wrong either with the international rules of the trade, or the role of the America, or within the American society, that why American intellectuals, why there is a discourse, हम इसको, I mean, I just don't want to pass कि Donald Trump abnormality है liberal order की. I don't हम्म। agree with this point of view. Some other time we can have this debate. I don't call protectionism as a KGO abnormality of political system, अपना economic system. Rather, what I understand is कि protectionism या Donald Trump जो है वो उन problems का reaction है जो शायद डीप डाउन जो है वो ले डाउन कर रहे हैं. सो मे बी दैट्स व्हाई वी हियर tariffs as an economic blasphemy by the newspapers or the articles of the especially the United States of America. तो my question is कि क्या ये अमेरिकन जो रूल्स ऑफ द गेम है, अमेरिका इज जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट द रूल्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एडवांटेज, क्योंकि इसमें ग्लोबल डिवाइड भी है ना, because they don't impact the economic अपना advanced world and the advancing world equally. जो टैरिफ्स हैं वो डिफरेंट तरह से है. तो मैं आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाई इन अमेरिका, ठीक है, इसको देखा जा रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द अमेरिका लाइज इन द प्रोटेक्शनिज्म.
तो इज इट देखिए जस्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट अगेन, और इज जी, इट अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ ट्रेंड और ग्लोबल कह लें कि इवेंट्स व्हिच आर शेपिंग दिस फिलॉसफी और थिंग्स सर? अच्छा देखें, पहले तो मैं एक अपनी पोजिशनैलिटी एक्सप्लेन कर दूं। एज अ रिसर्चर हम अपनी पोजिशनैलिटी के बारे में बड़ी बात करते हैं कि हम मेरे जैसे जो नोमैड्स हैं ना, हम लोगों का एक मसला है। हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान में आप जानते हैं कि आजकल लेट से मेरे जैसा बंदा, अगर उसका दिल चाहता है कि वो बलूचिस्तान के बारे में कोई बात करे, तो हमें वहां से भी निकाल दिया जाता है, या वहां से निकाल देते हैं, या वहां पे एक इदारा है जो हमें उठा के अंदर कर देता है। हम आजकल अमेरिका आ गए थे उस सब चीज से बचने के लिए। अब यहां भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लो तो गिरेबान पकड़ के आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो आपने ये वेबिनार पोस्ट भी करना है, तो मैं थोड़ा डरते डरते बात कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है वकास साहब कि ऑन अ सीरियस नोट, देखें बात यह है कि ट्रंप ने जो भी कुछ किया उसके पीछे अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि कोई इकोनॉमिक फिलॉसफी है या कोई इकोनॉमिक लॉजिक एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्युटली नॉट। और अमेरिकी इकोनॉमिस्टों का सबका इसके ऊपर एक कंसेंसस है, ना सिर्फ कि समबडी लाइक जोसेफ स्टिग्लिट्स, क्योंकि स्टिग्लिट्स जो हैं, स्टिग्लिट्स की मैं जा सकता हूं उनकी जो पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स वाली जो सारा फलसफा है और सब कुछ, बट इन आइदर केस यानी स्टिग्लिट्स इज नॉट समबडी हु इज ग्रेटली इन फेवर ऑफ द न्यू लिबरल ऑर्डर, या ही इज नॉट अ फ्री मार्केटर, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट टैरिफ्स की इम्पोजिशन के वो फिर भी खिलाफ होंगे। उसकी बुनियादी वजह, मैं पहले एक एनेक्डोट से स्टार्ट करता हूं जो सारे आपके स्टूडेंट्स भी इंजॉय करेंगे। अभी आजकल एक वीडियो बड़ी पॉपुलर हुई हुई है, पता नहीं आप लोगों ने देखी, जेफरी सैक्स जो एक मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने उस दिन एक वीडियो बनाई और उन्होंने उसके अंदर वो आई थिंक किसी कंट्री में थे और वहां बात कर रहे थे, मुझे भूल गया, आई थिंक ही वाज इन टर्की समवेयर। उन्होंने वहां पे एक बात की, उन्होंने कहा ये टैरिफ लगाना बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की, और इस पे डिबेट की जा सकती है कि ये एनालॉजी ठीक है कि नहीं, लेकिन जो एनालॉजी उन्होंने बिल्ड की, उन्होंने कहा टैरिफ लगाना ऐसे ही है कि आजकल अमेरिका में हर बंदा जो है वो क्रेडिट कार्ड लेके रेस्टोरेंट्स और स्टोर पे जाता है। तो मैं अगर क्रेडिट कार्ड लेके एक ही रेस्टोरेंट से रोज खाना खाता हूं, तो मैं महीने के एंड पे देखता हूं कि यार मेरे ऊपर इतना बड़ा उस रेस्टोरेंट का बिल चढ़ गया क्रेडिट पे। ठीक है जी, तो क्या मैं उस रेस्टोरेंट वाले का गिरेबान पकड़ सकता हूं कि भाई तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो कि मैं तुमसे खाना खरीदता जा रहा हूं और मेरे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है? कहता है एग्जैक्टली यही सिचुएशन है अमेरिका और चाइना की, कि आपकी पूरी पब्लिक चाइनीज गुड्स खरीदना चाहती है, और चूंकि आप उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते और आप डेट के ऊपर वो गुड्स खरीदते जा रहे हो, तो एंड पे आप चाइना का गिरेबान पकड़ लेते हो कि द चाइनीज आर चीटिंग अस, द चाइनीज आर जस्ट लाइक दैट रेस्टोरेंट। आपको वो रेस्टोरेंट का खाना नहीं पसंद या आपके पास पैसे नहीं है तो आप ना खाओ भाई उनसे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो पॉइंट ये है कि एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग। अब प्रॉब्लम यह है कि सारी अमेरिकी इंडस्ट्री जो है वो चाइना शिफ्ट हो चुकी है। अमेरिका में अमेरिकी जितने सर्विस सेक्टर है वो इंडिया, जैसे अमेरिकी आईटी सेक्टर है वो सारा इंडिया शिफ्ट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने खाली बात चाइना के बारे में नहीं की, प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां विजिट कर रहे थे और उनके विजिट के दौरान उसने ही, मैं वो अंग्रेजी में उसको, मैंने एक आर्टिकल लिखा तो आई यूज द टर्म कि ही सेंट मोदी बैक विद टैरिफ कैंडीज। मोदी वाज एक्सपेक्टिंग अ गिफ्ट एंड दोज आर द कैंडीज ही सेंट हिम बैक विद। क्यों? क्योंकि द आइडिया वाज कि उसने जब देखा, उसने कहा इंडिया के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अब जिन जिन मुल्कों के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट था वो ममालिक कौन थे? मैक्सिको, कनाडा, चाइना, इंडिया। दीज आर द टॉप फोर एक्सपोर्टर्स टू द यूएस जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि अमेरिका अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी डेफिसिट रन करती है इन कंट्रीज के साथ। डेफिसिट से मुराद यह है कि अमेरिका इनको एक्सपोर्ट कम करती है और इन मुल्कों से इंपोर्ट ज्यादा करती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन सबके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। लेकिन अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि चूंकि इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है टैरिफ लगाने पर, क्यों नहीं है, ये भी मैं इसका जवाब अभी देता हूं। तो इसलिए इट्स आउटराइट पॉपुलिज्म। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हु आर द पीपल हु आर इलेक्टिंग डोनाल्ड ट्रम्प। क्या है डोनाल्ड ट्रंप का वोटर जोसेफ स्टिग्लिट्स है, या क्या डोनाल्ड ट्रंप का वोटर जेफरी सैक्स है, या क्या डोनाल्ड ट्रंप का वोटर जेफ फ्रैंकल है, द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिविंग इकोनॉमिस्ट, या क्या उसकी सपोर्टर कार्मेन राइनहार्ट है? ये कोई हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट या येल के इकोनॉमिस्ट या यूसी बर्कले के इकोनॉमिस्ट उसके सपोर्टर नहीं है, या उसके वोटर नहीं है जिनके साथ वो इकोनॉमिक पॉलिसी
वही इकोनॉमिक पॉलिसी लाएगा दैट मेक्स इकोनॉमिक सेंस। नो, his voter is the white supremacist living in Texas. And so he has to please them. That white supremacist who doesn't know anything about China but hates China for no reason. And Donald Trump, not just now, but since 2016, has been telling him that, oh, the Chinese are robbing us off. You people are paying for the Ironically, expenses. they have bought the story second time, yet again. Yet The again, American exactly. voters. अमेरिकन वोटर्स। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी डीप डाउन पता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास एक बड़ी काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो उसको नहीं बताते? दो बातें। अब मैं आने लगा इकोनॉमिक लॉजिक की तरफ। क्या वो उसको नहीं बताते कि टैरिफ लगाने का मतलब ये है कि आपकी सारी जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जो लोगों ने इन आइदर केस कंज्यूम तो करनी है, तो जब आप उसको, जो मैं बार बार मिसाल दे रहा हूं कि वही चीज की लैंडेड कॉस्ट $100 थी, आपने टैरिफ लगाया, आज $120 हो गई, तो वो प्रोडक्ट हुकूमत अमेरिका ने नहीं खरीदना। वो प्रोडक्ट अमेरिका में रहने वाले असद इजाज भट्ट ने खरीदना है। तो हु वुड बेयर द ब्रंट ऑफ इन्फ्लेशन? इट्स द अमेरिकन पब्लिक। तो पहली तो चीज ये है कि टैरिफ लगाने से स्टेट को उतना रेवेन्यू नहीं आएगा उन टैरिफ से और बल्कि जितनी आईएमएफ ने इकोनॉमी के अंदर। आईएमएफ ने फर्स्ट क्वार्टर पे प्रोजेक्शन दी है कि 0.3% अमेरिकन इकोनॉमी हैज कॉन्ट्रैक्टेड इन द फर्स्ट क्वार्टर। एग्जैक्टली अब उससे होता क्या है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी के अंदर क्या होगा कि अ, वो तो जो देखे, जो कॉन्ट्रैक्शन की बात है, वो ऑफ कोर्स इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। अब उसके ऊपर दोनों किस्म के एविडेंसेस हैं। मैं ज्यादा इकोनॉमिक डिबेट में नहीं जाना चाह रहा कि जीडीपी क्यों या इकोनॉमी का साइज क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो इसका एक इमीडिएट इफेक्ट है वो ये है कि इकोनॉमी में जो डायरेक्ट इफेक्ट है और इमीडिएट इफेक्ट है टैरिफ्स का, वो ये है कि द इकोनॉमी वुड इन्फ्लेट, यानी कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा, क्योंकि वो सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि इनपुट्स हैं इंडस्ट्री की। माजी में जब अमेरिका वाज एन नेट ऑयल इंपोर्टर, अब नहीं है। नेट ऑयल से मतलब है कि कुछ वो एक्सपोर्ट भी कर रहा था लेकिन ज्यादा इंपोर्ट कर रहा था, तो नेट इंपोर्टर था। लेकिन अब अमेरिका ऑयल उतना इंपोर्ट नहीं करता। अमेरिका बल्कि शायद नेट एक्सपोर्टर होगा उस वक्त ऑयल, आजकल ऑयल का। लेकिन नॉन ऑयल कमोडिटीज जितनी भी अमेरिका इंपोर्ट करता है, स्पेशली सर्विसेज, उनमें से बहुत सारी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, वकास साहब, ऐसे हैं जो कि इनपुट्स हैं टू द इंडस्ट्री। यानी वो डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं है, वो इनपुट्स हैं अमेरिका की इंडस्ट्री में, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के प्रोसेस में। यानी छोटे छोटे पुर्जे जैसे चाइना से इंपोर्ट होते हैं जो कि अमेरिकी इंडस्ट्री के। अब जब वो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री प्राइसेस बढ़ाएगी, प्राइसेस बढ़ाएगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात, क्या चाइना, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है, नुक्ता, एक नया ब्लॉग शुरू हुआ है पाकिस्तान में उसके लिए। उस पे मैंने एक बात आर्ग्यू की है कि टैरिफ जो है, इस तरह की मैडनेस जो है, मैडनेस बिगेट्स मैडनेस। क्या हुआ? इन्होंने 145% टैरिफ कितना लगाया था जी? 10% टैरिफ लगा था फरवरी 1 को, वकास साहब। उसमें उसमें बढ़ावा होते होते इस वक्त टैरिफ है 145%, जबकि नॉन चाइना टैरिफ खत्म कर दिए गए। 90 डे का पॉज है इस पर टैरिफ्स में पूरे दुनिया के बाकी सारे ममालिक पे, लेकिन सिर्फ चीन एक वाहिद मुल्क है जिस पे द टैरिफ राइट नाउ इज 145%। राइट? उसके चाइना ने क्या किया कि चाइना ने भी इन पे कोई लगभग 129 130% टैरिफ लगा दिया आगे से। तो उससे क्या हुआ कि अगर अमेरिका ने डिसइंसेंटिवाइज किया इंपोर्ट्स को जो कि चाइना से आ रही थी, तो चाइना ने भी डिसइंसेंटिवाइज कर दिया उन इंपोर्ट्स को जो अमेरिका से आ रही थी। तो अमेरिका ने अगर अपना डॉलर वहां से बचाने की कोशिश की, तो वो डॉलर जो अमेरिका अर्न करता था बाय एक्सपोर्टिंग टू चाइना, वो भी अमेरिका की रेवेन्यूज खत्म हो गए। अब एंड पे फिर सवाल क्या आता है कि जितना डॉलर इन्होंने सेव करने की कोशिश की उसकी क्वांटिटी बढ़ी थी, या जितना डॉलर इन्होंने लूज किया उसकी क्वांटिटी बढ़ी थी? अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि 2018 में जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये टैरिफ्स लगाए थे, तो उसके बाद दिसंबर 2019 में आई थिंक उस ट्रंप के जाने से, कोविड के आने से बिल्कुल पहले, इन दोनों मुल्कों की आपस में डील हुई और ये ट्रेड वॉर जिसको हम कहते थे, ये खत्म हुई। तो इकोनॉमिस्टों ने 1.5 साल का एविडेंस देखा कि अमेरिका ने टैरिफ्स लगाने से हमारा चाइना के साथ, सिर्फ चाइना के साथ, एक मुल्क के साथ जो ट्रेड बैलेंस है वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। तो ट्रेड बैलेंस जिसको बचाने के लिए ट्रंप साहब ने ये सारी पूरी दुनिया की
ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को अप एंड किया था, वो ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होने की बजाय मजीद नेगेटिव हो गया था उन 1.5 साल में। उसकी वजह है, अब ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जब ट्रेड वॉर शुरू होती है और चाइना भी टैरिफ लगाता है, रिटेलिएटरी टैरिफ जिसको हम कहते हैं ना, कि अमेरिका ने लगाया और फिर चाइना ने रिटेलिएट किया, तो जो इलास्टिसिटीज है ना ऑफ एक्सपोर्ट्स, वो चाइना और अमेरिका की फर्क फर्क है। इस बात से मेरी मुराद ये है कि, आसान अल्फाज में समझाता हूं कि इलास्टिसिटी से मतलब ये, क्योंकि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज हैं, कि अमरीकी पब्लिक जो है उसका बिहेवियर आप समझ लें ऐसा है कि वो टैरिफ्स लगने के बावजूद भी चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करती रहती है। और चाइनीज पब्लिक का बिहेवियर ऐसा है कि जैसे ही अमरीकी इंपोर्ट पे टैरिफ लगता है ना, तो वो अमरीका से बिल्कुल ही खरीदना छोड़ देते हैं। ठीक है। तो जब चाइनीज हुकूमत अमरीकी इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाती है तो एकदम मैसिव डिक्लाइन आता है ऑफ चाइनीज इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस। लेकिन ट्रंप साहब जब 145% टैरिफ भी लगा देते हैं ना, तो अमरीकी पब्लिक चाइना से गुड्स खरीदती रहती है, क्योंकि दोनों मुल्कों की इलास्टिसिटीज में एक बहुत बड़ा फर्क है। अब ये मैं आपको टेक्निकल इकोनॉमिक डिटेल्स बता रहा हूं अमेरिकन चाइना ट्रेड की, जो जिसके ऊपर इकोनॉमिक रिसर्च पेपर्स में एविडेंस एग्जिस्ट करता है, जिसकी इदराक है। American economists are cognizant of this and they keep informing Donald Trump. But it's the political economy of trade that takes over. और political economy of trade क्या है वो मैंने आपसे ऑलरेडी अर्ज किया कि Donald Trump has made himself hostage to the populist claims he made at the time of elections. And now he's battling against the expectations of the public that he created himself at the time of his elections, कि मैं तो चाइना को ये कर दूंगा और मैं अमेरिका का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव कर दूंगा। It worked like magic for him when it comes to elections and getting re-elected. पर अब ही इज इन अ फिक्स। इसीलिए जब वो चीज की उसने, तो करने के बाद आप अगला पॉपुलिज्म देखें कि उन्होंने उसको कहा, उसने लगाने तो थे नहीं। मजे की बात बताता हूं आप, फरवरी 1 को उसने पूरी दुनिया पे यूनिफॉर्म टैरिफ लगा दिया जी, 10%। जो जो मुल्क हम पे टैरिफ लगाते हैं सब पे 10%। और साथ साथ उसने कहा कि पाकिस्तान जैसे, अब पाकिस्तान पे आता हूं, पाकिस्तान 29% कुछ कमोडिटीज पे पाकिस्तान टैरिफ लगाता था जो कि अमेरिका से इंपोर्ट होती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा पाकिस्तान पे भी बिल्कुल सर रिटेलिएटेड। अगला बिल्कुल जी। सवाल भी यही था कि सारे पैराए में जी। पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं। ओवर टू यू। मेरा ख्याल है काफी हमने आपको जो है ना वो लगातार, आप मेरा ख्याल है 40-50 मिनट हो गए, आप कॉन्टिन्यूसली आप ही ज्यादा बोले, तो वेल डन टू यू। ठीक है। नहीं नहीं, नॉट नॉट एट ऑल, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं वकास साहब, जस्ट सर सर। गेटिंग साइड ट्रैकिंग अ बिट। मैं सीएसएस एस्पायरेंट था ना वकास साहब, आप तो खैर मुझे उस दौर से जानते हैं, तो हम पाकिस्तान के बारे में बड़ी बुरी बातें भी सोचते हैं, करते हैं। हमारा मुल्क है, उसमें कुछ मसाइल भी हैं, और पाकिस्तानी लोगों के बारे में बड़ी बात की जाती है। अब मैं अमेरिका में रहता हूँ कुछ दो ढाई साल से, और यहाँ मुझे आज तक कोई इंसान पैसों के बगैर कोई फ्री किसी के लिए कुछ करता हुआ नजर नहीं आया आज तक, एक आदमी भी। और जब मैं सीएसएस कर रहा था ना, तो मैं नाम नहीं ले सकता, इतने ज्यादा लोग थे जिन्होंने मुझे किसी ना किसी तरीके से, बगैर उनका कोई इंटरेस्ट हुए हुए, बगैर, दे डिडंट चार्ज मी, डिडंट से एनीथिंग टू मी, आई कुड कॉल देम एट एनी टाइम ऑफ द डे। उन्होंने, या कुछ लोग जिनसे मैं इवन ऐसी जगहों पे हम पढ़ते थे, हु डिड दिस एज अ कमर्शियल एंटरप्राइज, उन्होंने भी उस चीज से बहुत ज्यादा बाहर निकल के मुझे सपोर्ट किया। तो जब मैं सिविल सर्विस में आया, तो आई हैड सो मेनी पीपल टू थैंक, और मुझे लगता था कि आई वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी पीपल एंड आई एम स्टिल अ प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ गिफ्ट दैट यू कुड पास ऑन टू अदर पीपल। जैसे आपकी इस पर कॉल में सब लोग हैं जिनमें मैं देखता हूं कि आई वॉज इन द सेम बोट 7-8 years ago। और ये सिविल सर्विस का इम्तिहान ऐसा है कि हमारी आंखों में भी वो चमक होती थी, और एक जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अच्छा यार, जिस दिन सीएसएस का रिजल्ट आए तो उस लिस्ट पे हमारा भी नाम लिखा हो। तो मैं उस फीलिंग को इतना ज्यादा, आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करता हूँ, बिकॉज आई गॉन थ्रू इट, कि आई एम ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल फॉर सीएसएस एस्पायरेंट्स। जी विकास थैंक यू। और मैं आई पर्सनली जो है ना वो आई अंडरस्टैंड कि हाउ हेल्पफुल यू आर फॉर बीइंग फॉर पीपल। ठीक है।
और इसी तरह टाइम एंड अगेन, बल्कि मैं यहीं पे आप, बल्कि वो बात तो मैंने एंड पे करनी थी कि मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाह रहा हूँ कि वी हैड डिस्कशंस विद सर। तो अभी इंशाल्लाह वेरी सून जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, ठीक है, खास तौर पर उसको, उसकी जो है एक ट्रिजेक्टरी जो हमें स्टार्ट 47 ऑनवर्ड, और particularly the Ayyub era, and then building on the Ayyub era, and then the especially the Zia time when the new liberal economics and the new liberalism, ठीक है, was the dominant political philosophy, and later on। तो इंशाल्लाह मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे सर कि हम जरूर जरूर। इंशाल्लाह इसको विल प्लान इट, और वो हम टारगेटेड करके तो एरा वाइज बेशक हम वी कैन हैव दोज कपल ऑफ टॉक्स और डिस्कशंस लाइक दिस विद द स्टूडेंट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, लेट्स थैंक डू यू इट, वेरी लेट्स मच। डू इट। हम हर वीकली या बाय वीकली यहाँ पे ऐसे ही इसी तरह एक टॉक करते हैं, और बिल्कुल। सब स्टूडेंट्स को आप इनवाइट करें, एंड लेट्स डू थैंक इट। यू। थैंक हैप्पी टू। यू। माय क्वेश्चन वाज कि अभी जी, आप सारे जो वापस आपने आते हैं जी। जी डिस्कशन जी। आप कर रहे थे, तो उसमें पाकिस्तान के लिए क्या है? लाइक हमारे यहाँ अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है, गवर्नमेंट ने जो इन्फॉर्म किया है कि जी हमारी जो टीम है वो हमने बना दी है, दे गॉन टू, दे आर ट्रैवलिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दे विल बी टॉकिंग टू द ट्रम्प रिजीम फॉर द रीनिगोशिएशंस एंड एवरीथिंग। तो व्हाट इज फॉर पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ने 29% टैरिफ, देखिए अच्छा, टैरिफ में एक और चीज समझने की जरूरत है कि टैरिफ अक्सर ममालिक लगाते हैं सर्टेन प्रोडक्ट कैटेगरीज पे। जैसे कि लेट्स से कि अमेरिका से अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करता है मोबाइल फोन्स फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो लेट्स से कि पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि अच्छा जी, आईफोन पे तो मैंने 29% टैरिफ लगा दिया, ठीक है, बिकॉज इट्स अ लग्जरी गुड। लेकिन अगर अमेरिका से कपड़े इंपोर्ट किए जाते हैं, लेट्स से जैकेट्स इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी इंपोर्टर, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि भाई इस पे मुझे 29% टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो मैंने शुरू में गैट की बात की थी ना, गैट 1947 में गैट बना, वही जनरल एग्रीमेंट ऑन जो भी ट्रेड एंड टैरिफ्स वटेवर। और उसके बाद 1995 में उसका नाम बदल के रख दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है एमसीक्यूज के लिए बच्चों को बता रहा हूँ कि 1969 में, 79 बोलते हैं या 69, 79 को मैं हमेशा कंफ्यूज करता हूँ उर्दू में। 1979 में चाइना जो है उसने अपनी इकोनॉमी बॉर्डर को ओपन किया था टू इंटरनेशनल ट्रेड, यानी उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट की। और 2001 में चाइना बिकेम अ मेंबर ऑफ द WTO, सो वेरी लेट एंट्रेंट। गैट जो था ना, उसकी मेंबरशिप लिमिटेड थी, और गैट जो था वो ट्रेड पॉलिसी पे इतना फोकस नहीं करता था, ठीक है जी। और गैट जो था वो सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज, जो मैंने शुरू में बात की ना, मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फोकस करता था। लेकिन वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह और उस तरह की चीजों पे फोकस नहीं करता था, या सर्विसेज पे उतना ज्यादा उसका फोकस नहीं था। तो इसलिए उन्होंने, बिकॉज ये मैंने शुरू में कहा कि ये रूल मेकिंग बॉडीज हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड को किन रूल्स के तहत चलाया जाएगा, वो रूल्स जो थे वो सेट करा था पहले गैट, और वो रूल्स बने बाद में WTO पे। जैसे जब WTO बना तो एक और मजेदार चीज उन्होंने ऐड की जिसको कहा गया MFN स्टेटस। जो लोग बच्चे करंट अफेयर्स में पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से रोज पढ़ते होंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, ये वकास साहब ऐड किया गया जब WTO की तश्कील दी गई सन 1995 में, जैसे मैंने बताया। तो और WTO पे अक्सर करंट अफेयर में MCQ आता है कि इन विच ईयर वाज WTO फॉर्म्ड, विच ईयर वाज गैट नेगोशिएटेड। गैट आई थिंक 47 में आया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, डबल चेक करते रहिएगा। ये सारे एमसीक्यूज मैंने सन 2016 में याद किए थे, मुझे वैसे आज तक याद है, 9 साल हो गए हैं, ये डेटें मुझे भूलती नहीं है, तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह याद रहेंगी। तो अभी मैं ये इस कॉल से पहले ये मैं बता दूं आप लोगों को, मैं तैयारी नहीं करके आया, मुझे ये याद है ये पिछले 10-10 साल से। तो तो 1995 में WTO बनी, और 2001 में चाइना उसका मेंबर बना। उन 6 सालों में और बहुत सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज उसके मेंबर्स बन चुके थे। रिसेंट मुझे नंबर आप चेक कर लीजिएगा, इस पे भी अक्सर MCQ आता है कि कितने मुल्क जो हैं इस वक्त मेंबर्स हैं WTO के, और मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, UN की ओवरऑल मेंबरशिप आई थिंक 193 पे थी, आजकल मुझे नहीं पता कितने पे। एनीवेज, पॉइंट मैं सर ये मेक कर रहा हूँ वकास साहब, इस सारी बात से साथ साथ मैंने कहा स्टूडेंट्स को MCQs की भी तैयारी कराता जाऊँ। तो तो मैं सिर्फ पॉइंट ये मेक कर रहा था सर कि चाइना एक लेट एंट्रेंट था, ठीक है। अब जब मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ये था कि आप ये कहो कि जी इस मुल्क पे हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, इसको हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देते हैं, और वो कंट्री आके से रिटेलिएट करता था कि मैं भी आपको MFN स्टेटस देता हूं। तो इंडिया ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, 96 में पाकिस्तान को MFN का स्टेटस दिया था, और पाकिस्तान ने उनको शायद आज तक नहीं दिया।
ठीक है। और पाकिस्तान उस पर डिली डली करता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब पाकिस्तान ने दिया है कि नहीं। एक ये दोबारा अटेम्प्ट जब एक जी अटेम्प्ट एक बड़ी पॉपुलर अटेम्प्ट हुई थी। इट वाज अभी हुई थी 2-3 साल पहले। इन द मीडिया, बट जो पाकिस्तान की सोसाइटी के जो कह लें आप कंजर्वेटिव सेगमेंट्स हैं या ऑर्थोडॉक्स उन्होंने सेगमेंट्स कहा हैं, कि नहीं, जी जी, दे रिटेलिएटेड जो अगेंस्ट कि आज तक इंडियंस से जब आप बहस करो तो वो इसको हमेशा दे ब्रिंग दिस अप, कि आप कहते हैं कि जी डिप्लोमेटिक जेस्चर्स पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं, लेकिन वो तो चले सारी हवाई बातें हैं ना, बट समथिंग दैट इज एक्चुअली ऑन पेपर ऑल्सो रैटिफाइड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, जो कि हमने आपको दिया हुआ है पर आपने आज तक हमें नहीं दिया। खैर उसमें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स का भी अमल दखल है, पर हम फिर किसी और दिन उस पर आएंगे। तो समझाना मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि WTO सर जब बनी तो उसने एक चीज करना शुरू की कि उसने प्रोडक्ट कैटेगरीज वाइज एक टैरिफ की सीलिंग बनाई, जिसको हम कहते हैं टैरिफ बाउंड भी कहते हैं या टैरिफ बाइंडिंग भी कहते हैं। ये टर्म गूगल कर लीजिएगा, मैं शायद इसको गलत बोल रहा हूं। बेसिकली इट्स अ सीलिंग, कि अच्छा जी मोबाइल फोन है ना, तो WTO अगर लेट से कहता है कि मोबाइल फोन पे टैरिफ की सीलिंग जो है वो 20% है, तो कोई भी दुनिया का मुल्क दूसरे मुल्क पे 20% से ऊपर नहीं लगा सकता, ठीक है जी। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि वो WTO की जो टैरिफ्स हैं उसको, चाइना जैसे मुल्क अगर टैरिफ में WTO की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके टैरिफ को 20% से लेट से मोबाइल फोन पे ऊपर नहीं ले जाते, तो उनके नॉन टैरिफ बैरियर जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होते वो इतने ज्यादा हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स के, जैसे कोई मुल्क अपने कानून या रेगुलेशंस के थ्रू ऐसी रिजीम क्रिएट कर देता है कि वो इंपोर्ट्स को डिसइंसेंटिवाइज करता है। अब उसमें उसने उस मुल्क के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन उसने फिर भी एक प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम थ्रू नॉन टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कर दी, जिसको ट्रंप साहब जिसके बारे में बात करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अब ट्रंप ने फिर क्या किया कि ही वेंट ऑल आउट अगेंस्ट WTO रेगुलेशंस, और उसने 145% टैरिफ चाइना के अगेंस्ट लगा दिया, पाकिस्तान के अगेंस्ट लगा दिया 29%, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज में पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ ऑलरेडी 29% टैरिफ लगाया था। लेकिन इस पे एनालिसिस स्टूडेंट्स के लिए क्या है, एनालिसिस ये है कि देखें एक बात समझे, कि पहली बात पाकिस्तान का केस, इंडिया, मैक्सिको, कनाडा, चाइना, विजोवी ऑल दीज कंट्रीज, अमेरिका का ट्रेड बैलेंस जो था वो नेगेटिव था। तो वहां तो चले कोई सेम्बलेंस ऑफ लॉजिक, वहां भी लॉजिक है, इकोनॉमिक फिलॉसफी नहीं है, लेकिन चले अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब करना चाहते हैं तो वहां फिर भी समझ आता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो बेचारा ऑलरेडी विजोवी अमेरिका एक नेगेटिव जिसका ट्रेड बैलेंस है, वो तो 29% अगर अमेरिका पे कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज में टैरिफ लगाता भी है तो इसलिए लगाता है कि उस पूरे गरीब मुल्क के पास 9 या 10 बिलियन डॉलर के टोटल रिजर्व्स हैं, वो बेचारा उन डॉलर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो एक अमेरिका जैसे मुल्क, एक जाइंट ऑफ एन इकोनॉमी जिसकी ट्रिलियंस के अंदर एक्सपोर्ट्स हैं, वो एक 9 या 10 बिलियन डॉलर वाली फॉरेन रिजर्व्स वाली इकोनॉमी को कहता है कि हम तुम पे भी टैरिफ लगाने लगे हैं। तो एक तो इट डजंट मेक सेंस। एक तो ये बात, दूसरी बात यानी इवन फ्रॉम अ ट्रेड वॉर परस्पेक्टिव इट डजंट मेक सेंस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दूसरी बात इसमें ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमी का आपने सवाल पूछा कि उन पे क्या इंपैक्ट होगा, इस पे वेरियस एनालिसिस आए हैं। अभी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट की है, वो बच्चे गूगल कर सकते हैं कि पाइड की एक रिपोर्ट आई है। इसी तरह ही एक आजम चौधरी साहब हैं, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो ओनर भी हैं, वहां पे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी एक रिपोर्ट की है। उन दोनों रिपोर्ट्स का जो लुबे लुबाब है या उनका जो कंक्लूजन है वो ये है कि बहुत लो टू मॉडरेट इफेक्ट्स होंगे पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर अगर ये ट्रंप के टैरिफ्स लगाए भी जाते हैं। और उसकी बुनियादी वजह उन्होंने यही बताई है कि पाकिस्तान के केस के अंदर जो टैरिफ्स हैं, वो अगर पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा तो हमारी अमेरिका के साथ, वैसे ही अमेरिका इज अ बिग, एक बाय द वे एक्सपोर्ट पार्टनर फॉर पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो ये बात कहते हैं कि जो ट्रेड है वो इतनी उसका उसके अंदर अगर 29% का इजाफा हो भी जाता है और पाकिस्तान भी उसके ऊपर टैरिफ लगाता है तो नेट इफेक्ट्स वुड नॉट बी वेरी लार्ज। तो और फिर वो इसका जो डिटेल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस है, वही जो इलास्टिसिटीज की मैं भी बात कर रहा था, वो भी कहते हैं, बट व्हाट द स्टूडेंट्स नीड टू रिमेंबर इज दैट इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी वुड बी वेरी लो टू मॉडरेट। तो इसलिए पाकिस्तान मस्ट नॉट बी वरीड अबाउट इट, अबाउट टैरिफ्स अगर करते भी हैं। अव्वल तो जो उन्होंने 90 दिन का पॉज किया है उस पर मेरा अपना तज्जिया ये है कि उन्होंने एक बात को समझे, ये स्टूडेंट्स के लिए समझना बड़ा जरूरी है। ये जो ट्रेड के टैरिफ्स हैं, ये कोई घंटों के हिसाब से तो चीज चल नहीं रही होती, ठीक है ना। ट्रेड इज अ लॉन्ग
लॉन्ग विंडेड प्रोसेस, ठीक है जी। तो उन्होंने 1 फरवरी को 10% लगाए, 10 फरवरी ये किया, 15 फरवरी किया, 1 अप्रैल को टैरिफ्स खत्म करके उनमें 3 महीने का पॉज कर दिया। तो इसका मतलब है कि द टैरिफ्स डिड नॉट इवन ट्रूली कम इनटू इफेक्ट बिफोर दे वर पॉज्ड। तो बेसिकली वो सिर्फ अमेरिकन वोटर को, ही वाज जस्ट कम्युनिकेटिंग दिस, कन्वेइंग अ मैसेज टू द अमेरिकन वोटर दैट यू इलेक्टेड मी फॉर दिस, आई केम इनटू ऑफिस ऑन 21st of January, विद इन 10 days on 1st of Feb I did this. And then because every economist told him that this could be very dangerous for the American economy, especially from an inflationary perspective. आप ये बात ज़हन में रखें कि अमेरिका एक बड़ी स्टैगफ्लेशनरी, सॉरी मैं इकोनॉमिक टर्म्स बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, अमेरिका में यानी महंगाई की एक लहर थी 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई और उससे पहले कोविड हुआ, और अमेरिका बड़ी मुश्किल से उससे बाहर निकला था। तो अमेरिका, सारे इकोनॉमिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को यह समझाया कि महंगाई फिर बहुत बढ़ेगी और आपके लिए एक दर्द-ए-सर बन सकती है, तो गुरेज करें इस हरकत से। तो उसने कहा कि भाई चाइना को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि असल जो उसका वोटर है वो तो चाइना पे टैरिफ्स देखना चाहता है कि वी नीड टू टीच चाइना अ लेसन। तो उसने कहा कि भाई नॉन चाइना, पूरी दुनिया में जिन मुल्कों से चाइना से बड़ा ट्रेड डेफिसिट भी है उन मुल्कों पे उसने पॉज कर दिया टैरिफ। लेकिन चाइना पे इसलिए नहीं किया बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक इशू, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। विद द चाइना is has become like a political issue in the US, and because China is the political issue, तो उसने चाइना पे, डिस्पाइट द फैक्ट कि इकोनॉमिक लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता, उसने चाइना पे सस्टेन किए टैरिफ्स। तो ये है जी इस वक्त मामला। थैंक यू वेरी मच। हमने टाइम काफ़ी ले लिया आपका, ठीक है। नहीं, कोई इशू। और थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए पर्सनली भी और स्टूडेंट्स के लिए भी इट्स बीन ग्रेट टू लिसन टू यू, और काफ़ी क्लैरिटी आई है, ठीक है। और अब हम कोई रीडिंग करेंगे, कोई आगे आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आई होप कि जरूर। जो पॉइंट्स हमने यहाँ से लिए, ठीक है, दे विल हेल्प अस टू फर्दर आर्टिकुलेट आवर थॉट्स, एंड कल को फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो आंसर्स हैं उनको आर्टिकुलेट करने में दिस टॉक ऑब्वियसली विल हेल्प अस। तो इंशाल्लाह जी, इन फ्यूचर होपफुली आई विल हैव यू फॉर अनदर जब आप टॉपिक कहें, लाइक ऑन द इकोनॉमी ऑफ जब आप कहें, पाकिस्तान, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच सर, एंड वंस ऑलवेज अगेन, देयर फॉर यू ठीक है। स्टूडेंट्स। और मैं इस श्योर इस श्योर पे प्लीज। मैंने एक पीस अभी लिखा है इसी टैरिफ्स के इशू पे। इट्स नॉट पब्लिश्ड येट, बट व्हेन इट कम्स आउट आई विल शेयर इट विद यू एंड यू कैन शेयर इट विद। जो श्योर बातें श्योर, मैंने अभी की हैं उनमें से बहुत सारी उस पीस के अंदर भी मेंशन्ड है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक टू यू एवरीवन, थैंक यू बहुत थैंक शुक्रिया, यू थैंक यू थैंक यू वकास साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू थैंक यू।